Hello everyone, welcome to Click Maths, and today we will discuss exercise 6.1 question number first, that is in given figure lines AB and CD intersect at O point. This is the line AB and this is also the line CD. These lines intersect at O point. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree, that means angle AOC, this angle, and BOE, that is BOE, this angle is 70 degree. अगर हम दोनों को प्लस करते हैं we will get 70 degree, and BOD, that means BOD is equal to 40 degree. Now find angle BOE and reflex angle COE. So first we will write given. इस टाइप्स के क्वेश्चंस में हम पहले गिवन लिखते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो राइट करते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें क्या क्या है कि जो लाइन है ए बी एंड सी डी वो इंटरसेक्ट करती हैं एट ओ पॉइंट पर, एंड एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री and angle BOD is equal to 40 degree. We have to find out angle BOE and reflex angle COE. आपको ये चीज को फाइंड आउट करना है। Now what is the solution? सबसे पहली चीज है this AB and CD intersect at O point, that means they have the vertically opposite angle. और vertically opposite angle इसमें क्या होंगे? This angle, that means AOC and BOD are the vertically opposite angle, and this total angle, that means angle COB and AOD is also vertically opposite angle. That means ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। राइट डाउन angle AOD is equal to angle COB, that means this and this, and angle AOC is equal to BOD, angle BOD के इक्वल है, and it is given angle जो BOD है वो 40 डिग्री का है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में दो इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये भी आपका 40 डिग्री का है। AOC and BOD equal है, this is equal to 40 degree. Next we have angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree, और आपको AOC की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है, that is 40 degree. तो we can write in equation number 1, this is equation number 1, put angle AOC is equal to 40 degree in equation 1. That means 40 degree plus angle BOE is equal to 70 degree. That means angle BOE is equal to 70 minus 40. That means angle BOE is equal to 30 degree. जो आपको फाइंड आउट करना था फर्स्ट, that is angle BOE, वो आपको मिला है 30 डिग्री का BOE, that means 30 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास, आपको रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द COE? COE दैट मींस अभी आपको सिर्फ इतने वाला एंगल जो रहता है वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज है एंगल, दिस एंगल AOC and COB, this one and this one angle are the linear pair of angles. That means इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। एंगल AOC प्लस COB is equal to 180 डिग्री because of linear angle. यहां पर आपको AOC 40 डिग्री है प्लस एंगल COB is equal to 180 डिग्री, that means angle COB is equal to 180
-40 डिग्री, दैट मीन्स 140 डिग्री। दैट मीन्स आपके पास क्या है, COB आपको 40 डिग्री मिला है, 140 डिग्री। उसमें से आपको EOB ऑलरेडी पता है, दैट इज 30 डिग्री। तो अगर हम 140 में से 30 डिग्री को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट COE। COB एंगल, we can write angle COB like angle COE, that is COE and EOB. We have angle EOB is equal to 30 degree, that means 140. COE angle is equal to 140 minus 30 is equal to 110 degree. Here आपको क्या मिला है, एंगल BOE जो आपको 30 डिग्री मिला है यहां से। इन द सेम वे आपको COE एंगल 110 मिला है, लेकिन हमें एंगल सिर्फ COE नहीं निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। तो अभी हम रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करते हैं, यहां पर आपके पास टोटल एंगल होता है, तो आपके पास जो COE एंगल बना है वो इस टाइप से बना है, दैट मींस दिस इज 110। और रिफ्लेक्स एंगल के लिए आप टोटल में से, ये आपका टोटल जो वन सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है, तो 360 में से अगर आप 110 को माइनस करते हैं तो यू फाइंड आउट द रिफ्लेक्स एंगल। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, रिफ्लेक्स एंगल COE, that means 360 minus 110, that means 250 डिग्री। तो यहां से आपके पास रिफ्लेक्स एंगल COE 250 डिग्री मिला है, और दिस इज एंगल 30 डिग्री। In this way we can solve this question. Next is Vedic maths trick number 10. Not Vedic math, this is the maths trick number 10. इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं रेलवे का एंड अदर एग्जाम होते हैं बैंक के। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारा टाइम चला जाता है। पहले हम इनको एक्सपोज करते हैं, y के इक्विवेलेंट रखते हैं, देन वी स्केल करते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर नंबर है दैट इज 20, फर्स्ट आपको 20 के फैक्टर्स लिखने हैं। 20 के फैक्टर होंगे 2, 10। आप 20 को 2 इंटू 10 भी लिख सकते हो, आप 20 को 4 इंटू 5 भी लिख सकते हो, लाइक दिस। लेकिन आपको वही फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आता है। यहां पर अगर हम 10 माइनस 2 करते हैं वी विल गेट 8, तो दैट मीन्स आपका डिफरेंस 1 नहीं है। इफ वी चूज 4 एंड 5 एंड वी सब्ट्रैक्ट दिस 5 माइनस 4 वी गेट 1, तो सो वी चूज हेयर 4 एंड 5। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है, फैक्टर लिए हैं, उन फैक्टर्स में से जिनका डिफरेंस 1 आता है सिर्फ उनको चूज करना है। अगर यहाँ आपस में प्लस है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्लस, और ये जो प्रोसीजर है वो उन क्वेश्चंस में है जहां पर लास्ट तक वो जा रहा है, इनफाइनाइट तक कोई क्वेश्चन जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 1 आया, तो प्लस जो पॉजिटिव क्वेश्चंस होते हैं, प्लस के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको आंसर सिर्फ 5 लिखना है जो बिग टर्म है। सो वी टेक 4 एंड 5 एंड आवर आंसर इज 5, क्योंकि ये क्वेश्चन प्लस का था। इन द सेम वे इफ वी हैव क्वेश्चन विद नेगेटिव साइन, इस क्वेश्चन में भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। 56 के फैक्टर लिखने हैं जहां पर डिफरेंस 1 आता है। 8 7 56, तो यहां पर डिफरेंस आपका 1 आता है, क्योंकि यहां पर माइनस है तो आंसर इज 7। अगर यहाँ पे प्लस होता तो आंसर इज 8। So this is a short trick. I hope you like this video. Please share, subscribe our channel, that is ClickMath. Thank you.